So today we have at Tapas Foundation a very special guest with us, who is an inspiration for our generation. You must have read about his recent Twitter post in which he motivated millions of hearts. It is my privilege to welcome our honorable guest, IAS officer Nitin Sangwan. So, sir, I will be starting with. Yeah, thank you, Trupti. Thank you so much, sir. I'll be starting with the first question, which is, sir, was it your childhood dream to be a civil servant, or you thought about it later in your life? No, actually, I thought it very late in my life. So at that time, I was in my, I think, third job when I thought about this thing. So it was very late for me because there was no one from my family and I didn't have that great drive also during my graduation and even my post graduation. But one fine day when I was working, so this thought came to my mind, and I was glancing through the syllabus of UPSC Civil Services, and that was the moment that I thought, okay, I should be preparing for this thing. Okay, okay. I also read And about your yeah, journey that you were in yeah, Infosys at that time. Okay, yeah. okay. So, sir, as you made us aware that your results in the board exam of class 12 were not that good. Like what you were expecting, it was not like that. The marks were 24 in chemistry, if I'm right, and you shared about And it. yeah. So, how did you react to it, and what kept you feel motivated during that period of No, time? actually, see, I was expecting that I would have, got same or maybe even lower marks. So I was not very disturbed. So when you get the results which are not as per your expectation, in that case you feel disappointed. But if you know okay, you are going to fare not very well in the examination, then it's not a big surprise for you. तो उस केस में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे को ज्यादा सरप्राइज ना हुआ ना कोई दुख हुआ. बस इतना ही था, थोड़ा सा पेरेंट्स को थोड़ा बुरा लगा था, तो वो देख के मेरे को गंदा लगता था. So I think that feeling I came over very soon because soon after I got into college, तो वहाँ पे जाके एक माहौल भी थोड़ा चेंज हो जाता है. I think that was a great escape at that time. तो निकल गया समय ऐसे ही. So I was asking that we live in a kind of society where marks are given more importance, and the intellect level of a student is judged. A student is judged based on the हम्म marks that he or she receives. So what do you think about it? हम्म हम्म. देखिए ऐसा है कि मार्क्स एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, इस बात को मैंने अपनी पोस्ट में भी डिनाई नहीं किया था. एंड द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट दैट, ठीक है ना. क्योंकि अगर ना तो टीचर्स के पास में ना ही इंस्टीट्यूशंस के पास में, किसी के पास में भी है ना, ऐसा कोई और दूसरा टूल है नहीं आज के दिन में कि वो आपके अंदर झांक के देख ले और पता लगा ले कि आपका इंटेलेक्ट कैसा है. और इंटेलेक्ट को भी है ना, देखो प्रूव तो करना ही पड़ता है, चाहे वो एग्जाम में प्रूव करना पड़ता हो, चाहे लाइफ की सिचुएशन में प्रूव करना पड़ता हो. दैट इट हैज टू बी प्रूव. तो मैं मार्क्स का जो है एक अपना पैटर्न है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इवोल्व हो पाया है इतने सालों तक, ठीक है. तो बट जैसा कि आप कह रही हैं तृप्ति की है ना, कि इसी क्राइटेरिया के आधार पर जज नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा होती हैं. जैसे कि आप एम्पैथी लगा लीजिए, हार्ड वर्किंग लगा लीजिए, सिंसियरिटी लगा लीजिए, इंटेलिजेंस लगा लीजिए, ठीक है. उसमें से Yes. इंटेलिजेंस है ना, इट इज वन ऑफ द ह्यूमन ट्रेट्स जिसका कि सोसाइटी में वैल्यू हमें करना चाहिए. और मार्क्स उसको इवेल्युएट करते हैं. तो उसके अलावा बहुत चीजें होती हैं भैया, कि आपका कई लोग ऐसे होते हैं हु आर पॉपुलर एंड हु आर लाइक्ड बाय एंड हु आर सक्सेसफुल ड्यू टू देयर काइंडनेस ओनली, ठीक है. मदर टेरेसा, आप उसका एग्जांपल ले लीजिए. देयर आर पीपल हु आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर शेयर हार्ड वर्क, ठीक है. आप चाहे मैरी कॉम का एग्जांपल ले लीजिए. तो मतलब देयर आर मेनी पीपल. तो अपने आई थिंक अपने देश में है ना, थोड़ा सा हमें अपनी इस थिंकिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं. और अल्टीमेटली वैसा भी नहीं है कि है ना कि मार्क्स से कुछ बहुत ज्यादा हम कुछ निकाल भी पा रहे हैं. क्योंकि अगर कोई सोसाइटी इनोवेट नहीं करती है, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इन दैट केस फिर उस मार्क्स लाने का फायदा क्या हुआ. कि आपको पता है कि हमारे देश में कितने पेटेंट्स पर मिलियन पॉपुलेशन फाइल होते हैं. दे आर वेरी लो एक्चुअली, इवन आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. रिसेंटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 10-15 साल में, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो सिचुएशन वाज वेरी वेरी पुअर. तो yes, marks are not everything, but yes, they have some value in life, but we should not be overemphasizing upon them. Yes, sir.
Also, sir, as a student, I would like to ask कि sometimes हमारे साथ ऐसा होता है कि we want to pursue something different. जो बाकी लोग कर रहे हैं, straightforward career की choice से थोड़ा different करना चाहते हैं, something को new, कुछ new करना चाहते हैं. तो इस केसेस में लाइक एज अ स्टूडेंट व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर अ स्टूडेंट कि इतना बोल्ड डिसीजन लेना, लाइक कि सब कुछ छोड़ के अपना ड्रीम को फॉलो करना, हाउ इज इट इजी एंड should what should a student think before taking such a step, and how can a student prepare himself or herself before taking such a decision? नहीं, डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना वो एक बड़ी रिस्क एवर सोसाइटी है, मतलब है ना, पेरेंट्स कभी बच्चों को है ना रिस्क लेना नहीं सिखाते, क्योंकि एक तो एजुकेशन पे इतना एम्फेसिस क्यों है, मेनली एम्फेसिस इतना ही है ना क्योंकि पढ़ लिख के बच्चा नौकरी लग जाए भैया, पहले है ना नौकरी, उसके बाद में है ना कुछ बात जिंदगी में देखा जाएगा, जो तुम कर लेना करना है वो कर लेना। लेकिन एक वो एक टाइम होता है कि उसके दौरान है ना इंसान में फायर होती है अंदर, जो जो यंग होता है, कॉलेज टाइम में होता है, तो उस टाइम पे अगर वो फायर उसने कहीं न उससे कुछ इग्नाइट नहीं किया तो फिर वो सबड्यू भी हो जाती है। तो दोनों ही पहलू हैं इसके। मैं एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है अभी इसमें कि स्टीव जॉब्स है ना, मतलब वो एक बड़ी नॉट सो मतलब वेल ऑफ फैमिली से थे, आई थिंक स्टीव जॉब ही वाज। तो उन्होंने जब एडमिशन लिया तो फिर उसके घर वालों ने है ना एक महंगे से स्कूल में एडमिशन या जो भी इंस्टीट्यूशन था उसमें करवाया, बट वन फाइन तो ठीक है, फिर अल्टीमेटली है ना उन्होंने थोड़ा साहस किया और फिर बोले कि चलो ठीक है यार छोड़ ही देते हैं अल्टीमेटली, एंड ही लेफ्ट एंड यू नो व्हाट ही क्रिएटेड नाउ दैट वी एवरीवन ऑफ वी कैन सी। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस है आप में भैया कि आप कुछ छोड़ के कुछ ऐसा कर दिखाओगे तो छोड़ देना चाहिए, ऐसी तो कुछ नहीं होता है कि ना कि जिंदगी में यही एक चीज है। हम जैसे जैसे आप आई डोंट नो कि जैसे कि आपके कॉलेज में भी है, हाउ मेनी पास आउट्स यू कैन इवन नेम जिन्होंने आज तक है ना जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया हो कि पूरे देश में छोड़िए कि जिन्होंने है ना अपना रास्ता खुद निकाल के खुद बड़ी सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली मेनी ऑफ अस और मोस्ट ऑफ अस रादर आई वुड से दे फॉल इनटू दिस रट ऑफ लाइफ कि वो फिर सिंपली है ना वी सिंपली डू थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी मैकेनिकल। तो आई थिंक सम पीपल शुड टेक दिस चांस एंड आवर सोसाइटी एंड आवर इंस्टीट्यूशंस शुड एनकरेज आल्सो। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ दिया तो बोल देंगे यार ये तो बर्बाद होएगा देख लेना, है ना, इंजीनियरिंग नहीं किया तो देख लेना, इसका तो कुछ नहीं हो सकता अब लाइफ में। Yes, या sir. And sir, finally, I would like to ask this question that like students nowadays fall into the problems of depression, anxiety, like कि marks कम आए हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो what would you suggest कि कैसे इन चीजों से दूर रहना चाहिए and कैसे एक positive attitude रखना चाहिए लाइफ में? अगेन आपने है ना एक बहुत बढ़िया बात किया है, मतलब अनफॉर्चुनेटली है ना अभी काफी इस तरह के मेंटल हेल्थ के साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, मतलब इसी लेफ्ट राइट सेंटर। तो इसको दूर करने का एक तरीका तो क्या होता है कि बढ़िया से दोस्त बनाओ यार, है ना, जिनको आप डिपेंड कर सकते हो। और मेरे हिसाब से कॉलेज टाइम इज वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि लाइफ में आगे नहीं बनेंगे, बट जिस स्केल पे और जिस डेप्थ के साथ में आपके फ्रेंड बनते हैं तो उनको बनाओ। थोड़ा है ना ऐसा नहीं है कि एक ही मोनोटोनस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते रहो, थोड़ा सा अपना है ना ध्यान भटकना चाहिए। ध्यान भटकना इज ए गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटकता है तो आपकी जो एक विशियस साइकिल होती है ना थॉट्स की और काउंटर थॉट्स की, वो ब्रेक हो जाती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक। स्पोर्ट्स खेल लिया, घूम फिर के आ गए, या कुछ ऐसे ही टाइम पास कर लिया, मतलब टाइम पास इज अ वेरी गुड थिंग इन लाइफ की, मतलब है ना आप करो उसको तो उससे ना आदमी का एक रिफ्रेशमेंट होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना तो टाइम को थोड़ा डिवाइड करो। और अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया का ये आ गया है, मतलब इट इज वेरी एडिक्टिव, मतलब मैनी पीपल से कि इट इज एज एडिक्टिव एज टेकिंग हेरोइन और गांजा और समथिंग। तो इससे थोड़ा सा अगर दूर रह पाए इट इज गुड, मतलब। तो अभी पहले तो समस्याएं होती ही थी, तो अभी जो आपके लोगों की जनरेशन है इसमें पीयर प्रेशर भी आ गया है जी, सोशल मीडिया भी आ गया है, तो दीज आर सम डिफिकल्ट थिंग्स दैट यू नीड टू हैंडल। और आई थिंक थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, एंड वी शुड प्रमोट अवर कलीग्स आल्सो कि भी आप भी थोड़ा सा है ना लेट अस कम आउट एंड लेट्स एंजॉय। तो आई थिंक दैट इज द वे।
और हेल्प करना चाहिए, मतलब है ना, दूसरे का अगर कोई लगे तो ऐसा नहीं है कि यार लेट अस डिस्कार्ड ए पर्सन इफ somebody इज वेयरिंग आउट ऑफ हिज और हर वे। नहीं तो अब बाद में एग्जांपल तो सुशांत सिंह राजपूत का देने का बहुत आ जाते हैं आगे कि उसको ये करना चाहिए था, इसको ब्लेम कर दें, इसको ब्लेम कर दें, लेकिन साथ वालों ने किसी ने कुछ, आई थिंक दिल्ली से थे ना वो, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, तो वी शुड बी हेल्पिंग आउट ना, जो जो आपको लगे तो यू गो फॉरवर्ड, और आपको लगता है कि आप ठीक है और सामने वाला नहीं है तो यू शुड हेल्प हिम और हर।